Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. So I'm very happy to be here today and very grateful to the authorities of this wonderful medical college and to ISKCON Gwalior for arranging this beautiful program. So all of you are first year students? Yes, so when did the college start? 14th of October. So maybe what, 1.5 months now? So how are you feeling? Is stressful or is okay, relaxed? Okay. Anyway, first of all, I want to congratulate all of you. So you faced such a tough challenge, NEET exam. I was remembering my days, I gave IIT JEE exam in 2001 and it was very tough in those days. 1.5 lakh students were giving IIT JEE and now I think more than 20 lakhs. How many students give NEET exam? 25 lakhs, imagine. And out of that, MBBS seats are how many? 10,000 or 5,000? Yeah. So still it's tough. One of the good colleges, right? This government medical college. So first of all, I want to congratulate all of you. And you are going to be doctors. And doctors are those who can save others' lives. Such an important role, imagine. So many lives are in your hands. So therefore, it's very important that you should be absolutely well-oriented in your own life. Imagine if somebody is in stress, anxiety and goes to the operation theatre. What a great risk, right? Yes or no? Or you are sitting in a OPD chamber and patients are coming and you're not in a good mood. You don't know what medicines are prescribing. Sometimes you're dealing angrily with the patient. Imagine he's already suffering. He comes to a doctor for a sigh of relief and after meeting doctor he's again in anxiety. Will he feel good? So therefore, this topic I have chosen, art of self-management. That before you manage a hospital or your patients or nurses, first you must manage yourself. That is very, very important, my dear friends. So I was looking at some of the data today. I got one published data, which is a report on, it's a study done on the stress levels among medical students. Can you see the fonts is readable? Maybe a little bit. So it is said here that what are the stress factors among the medical students? One is vastness of academic curriculum. Do you agree with this? Okay, so 61% respondents agree with this point. 52% said lot of exams. Is it true you have a lot of exams? Okay. And then there's a lot of competition. And then there's a fear of failure or poor performance in exam. And another major group of people said lack of recreation. Is it true? Okay. Actually, जब आप धर्म को अपनाते हैं, then you become a much better person in your life. एक छोटा सा example देता हूँ. If you have 1 0, the value is 0. If you have 2 zeros, what's the value? 0. If you have 4 zeros, again 0. You can achieve anything in life. आप PhD degree लीजिए, बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए, you become very rich, very famous. They're all zeros, but they have no meaning in life unless you add 1. अगर आप 1 add कर देंगे, तो 1 के बाद अगर कितने भी zeros लगाएंगे, क्या होगा? वैल्यू बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. 1 नहीं हुआ तो 0 का 0 रहा. 1 क्या है? 1 क्या है? धर्म, भगवान. जब भगवान को हम अपने जीवन में जोड़ते हैं, कृष्ण को जोड़ते हैं, तो हमारा जीवन
becomes more meaningful. Otherwise वो सब 0-0 में ही रह जाते हैं. तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इस प्लीज बी ओपन माइंडेड. दिस इज द एज माय डियर फ्रेंड्स. आप फर्स्ट ईयर में हो अभी. दिस इज अ वेरी क्रूशियल जंक्शन इन योर लाइफ. And if you adopt to spirituality now, if you accept Bhagavad Gita now, you will actually see your life will become very glorious. कई बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे आप IIT जाके क्या आप इस्कॉन में जुड़ गए, स्कूल में हैं. But what really matters, you know, is the satisfaction within. अब बाहर से बहुत कुछ अचीव कर लीजिए. मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी था, मैंने 50% बैचमेट्स US में है. I could have also gone there. लेकिन अभी last month one of my friends he is working in Abu Dhabi now. मेरे बैचमेट था. But when he came to Vrindavan, when he met me, वैसे तो मेरा नाम राधाकांत दास है इस्कॉन में, लेकिन लीगल नाम रोहित था. बोले यार रोहित, तुम जो लाइफ जी रहे हो ना, दैट इज रियली मच बेटर देन व्हाट आई एम लिविंग. He could see the happiness in my face and I could see that we are same age, 41, but he was looking so dull and so, you know. So because I could see that change in my, because I am staying in Vrindavan, मैं वृंदावन में रहता हूँ, धर्म के मार्ग में हूँ, तो अंदर से खुशी आती है, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन है. आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई कंट्री. जब मैं एक अमेरिकन फर्म के लिए जॉब कर रहा था बैंगलोर में 2006 में, तो मुझे अंदर से बहुत एक ग्लानि महसूस हुआ. आई फेल्ट गिल्टी. व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, वर्किंग फॉर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट एम आई डूइंग फॉर माई कंट्री. तो मुझे तब प्रेरणा मिला, मुझे कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए. तब मैंने इस्कॉन फुल टाइम ज्वाइन किया. तो वैसे आप भी डॉक्टर्स बनेंगे, बट व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर्स? दे आर वेरी कमर्शियल माइंडेड डॉक्टर्स ऑल्सो. और बड़ी दुख की बात है, आपने कोविड में सुना होगा कई डॉक्टर्स, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज द न्यूज़, बट सम ऑफ देम दे डिड वेरी बैड थिंग्स लाइक स्टीलिंग ऑर्गन्स एंड थिंग्स लाइक दैट. वो भी डॉक्टर्स हैं. भगवान की तरह देखते हैं कि नहीं? जब मरीज आते हैं इतना रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स को. लेकिन आज कुछ डॉक्टर्स बिकॉज ऑफ ग्रीड फॉर मनी दे आर डूइंग सो मेनी बैड प्रैक्टिसेस. सो देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब डॉक्टर्स बनेंगे ना, यू विल बी डॉक्टर्स विद अ डिफरेंस. यू विल डू गुड टू द सोसाइटी, गुड टू द कंट्री. द वर्ल्ड नीड्स गुड डॉक्टर्स. आपको पता होगा, जैसे मैं कई दूसरी कंट्रीज में भी गया, तो इंडियन डॉक्टर्स आर देयर एवरीवेयर, बिकॉज दे आर नोन फॉर द गुड वर्क. बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करोगे लाइफ में ना, आप देखेंगे विल बिकम मच बेटर डॉक्टर. योर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी विल बी मच बेटर. जैसे मैंने बताया शुरू में कि आप जब पेशेंट्स को मिलेंगे, डोंट जस्ट राइट अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन, टेक 1 or 2 minutes एंड टॉक टू द पेशेंट. कैसे वो अपने लाइफ को बैलेंस करे, कैसे अपने हैबिट्स इंप्रूव करे, दैट ही विल बी क्योर्ड मच फास्टर विथ फेथ ऑन गॉड. तो एनीवे, आई विल क्विकली रन थ्रू माई जो भी प्रेजेंटेशंस था. हमने क्या बात किया था, लाइफ को कैसे बैलेंस करना है. 4 पहिए कौन कौन से लाइफ के? वर्क एंड रिक्रिएशन भगवान गीता में कहते हैं, या फिर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग भी बोल सकते हैं. इसको हमें बैलेंस करना चाहिए लाइफ में. अगर ये 4 चीज़ें हम बैलेंस करेंगे, भगवान कहते हैं युक्त आहार. फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमली इन प्रॉपर क्वांटिटी, नॉट मोर नॉट लेस. सिमिलरली स्लीप, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ स्लीप, प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप. जो लास्ट ये स्लाइड जो मैंने आपको बताया था, द बेस्ट टाइम. अर्ली टू बेड इसलिए कहा गया है ना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. हमारे बचपन में तो बोला जाता था, अभी बोला जाता है मुझे नहीं पता, स्कूल में सिखाया जाता है. और हमारे शास्त्रों में बताया है इसके बहुत लाभ है. अगर कोई व्यक्ति सुबह उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए और भौतिक स्वास्थ्य के लिए, इवन फॉर गुड हेल्दी बॉडी, माइंड एंड सोल, अर्ली टू बेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड. हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड अगर आपके पास रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट. मैं आपको एक सच्ची घटना बोलता हूँ. एक बार हमारे इस्कॉन के सन्यासी बहुत फेमस राधानाथ स्वामी जी, एक बार वो मदर टेरेसा से मिले. मदर टेरेसा आप सब सुने? उन्होंने क्या नहीं किया, यू नो, कैलकाटा में स्लम्स में जा के उन्होंने ऐसे ऐसे लेपर पेशेंट्स को उन्हें ट्रीटमेंट किया. तो उन्होंने पूछा कि मैडम आप कैसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, आपको कहाँ से ताकत मिलती है? तो उन्होंने क्या किया पता है? जैसे हम लोग जप माला रखते हैं, क्रिश्चियंस के पास भी एक माला होती है. हाँ,
उसको रोजरी बीड्स कहते हैं। उन्होंने अपना माला हाथ में लिया, कहता दिस इज वेयर आई गेट माई पावर फ्रॉम। तो जो आध्यात्मिक शक्ति जो हमें मिलता है ना, दैट इज हाईएस्ट देन एनीथिंग एल्स, सबसे ऊंचा है वो। तो ये जब आप जुड़ जाएंगे भगवान के साथ, तो आपको अंदर से जो प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन, एनर्जी, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट अगर आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगा ना, तब आप यू कैन फेस एनी डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। जैसे मैंने शुरू में बताया, कई बार मेडिकल स्टूडेंट्स भी सुसाइड कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे फेमस एक्टर सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? उनके पास अचीवमेंट्स की कमी नहीं है। कहां कमी है? दे डोंट हैव इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर नहीं है। एंड दैट कम्स व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ टू गॉड थ्रू प्रेयर्स। तो शुरू में हमने जब कीर्तन किया, आई वाज वेरी हैप्पी, आप लोग उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे थे। जो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल मंत्र, डिवाइन मंत्र विच कनेक्ट्स यू टू गॉड इमीडिएटली। तो आप लाइफ में जितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर आप ये महामंत्र बोलेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, यू विल फील वेरी हैप्पी। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने कहा है, व्हेन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, व्हेन आई सी नो रे ऑफ होप इन होराइजन, आई टर्न टू भगवद गीता एंड दैट गिव्स मी न्यू इंस्पिरेशन एंड मीनिंग इन लाइफ। तो हमारे फादर ऑफ नेशन, जिन्होंने पूरे ब्रिटिश के साथ अकेले उन्होंने युद्ध किया, उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से आया था? भगवद गीता। और उनकी इच्छा थी, पता है, महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के हर स्कूल कॉलेज में गीता सिखाई जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम स्वाधीनता के बाद ये सब भूल गए। तो मुझे बहुत खुशी है आज आपके कॉलेज में ये भगवद गीता के बारे में ये सेशन रखा गया है। एंड सोसाइटी, एक बार मेनका गांधी जी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थी, उन्होंने इस्कॉन के स्वामी जी से एक बार मिल गई हो, तो बोले स्वामी जी आप एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बात बोला कि देखो, जो बाहर जो पोल्यूशन है ना, इसका रूट कॉज क्या है पता है आपको? अंदर की पोल्यूशन। द पोल्यूशन इनसाइड इज द कॉज ऑफ पोल्यूशन आउटसाइड। अंदर हमारे अंदर ग्रीड है, वी वांट टू एक्सप्लॉइट, इसलिए हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, पोल्यूशन बढ़ाते हैं। तो इसलिए अंदर का अगर पोल्यूशन हट जाएगा तो बाहर का पोल्यूशन भी हट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस्कॉन में? अंदर की पोल्यूशन दूर करते हैं। अंदर जो हमारे बैड हैबिट्स हैं, बैड क्वालिटीज हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, प्राइड, एनवी, ये सब को हम खत्म करते हैं। तो बीइंग कंपैशनेट, तो ये गुण हमें डेवलप करना चाहिए। तो कैसे हम कर सकते हैं? कभी गार्डनिंग करके, कभी गौ सेवा करके, बड़ों की सेवा करके, संकीर्तन करके। ये सब करने से क्या होता है? हमारे अंदर दया की भाव उत्पन्न होती है, कंपैशन। अगर किसी में कंपैशन नहीं है तो कैसा मनुष्य? तो कंपैशन, दया की भावना होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार हमारे अंदर ऑलरेडी बैड हैबिट्स हम डेवलप हो चुकी होती है, और हैबिट्स ऐसा है कि वो एक एडिक्शन हो जाता है। शुरू में लगता है कि अरे यार कोई नहीं, कभी कभी एक दो बार स्मोक कर लिए, एक दो बार ड्रिंक कर लिए, बाद में क्या हो जाता है? इट बिकम्स अ हैबिट। जैसे एक फेमस सेइंग है, हैबिट्स आर लाइक सॉफ्ट कोजी बेड्स। जाना तो बहुत इजी है, इन ठंडी में बेड से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट टू गेट आउट। तो इसलिए वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल कि हमारे अंदर गुड हैबिट्स या बैड हैबिट्स है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड हैबिट्स क्या है? पढ़िए आप, क्या लिखा है? डेली एक्सरसाइज, डेली रीडिंग, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, डेली मेडिटेशन, प्रेयर, सेवा करना, बीइंग पंक्चुअल, दीज आर सम गुड हैबिट्स। एंड दिस इज द एज, अभी आप जो हैबिट डेवलप कर लेंगे, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, वंस यू पास आउट फ्रॉम कॉलेज, अब हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हैबिट्स हमारी फॉर्म होती है वो स्कूल एंड कॉलेज डेज में ही फॉर्म होते हैं। सम ऑफ द बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, pornography. You know, today a lot of youth is suffering from addiction to pornography. It's even more deadlier. I was reading some news. It's even more deadlier than
addiction to drugs nowadays, addiction to pornography. तो ड्रग्स एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, अल्कोहल, इंटरनेट एडिक्शन. एक स्वामी जी कह रहे थे इस्कॉन में कि आज के ज़माने में अगर एक दिन किसी में निर्जला व्रत रखने, बिना पानी के व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर बोले एक दिन किससे व्रत रखना है, मोबाइल से, तो मुश्किल है. कहते हैं नहीं भैया. एक बार एक अमेरिका में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूथ से कि अगर आपके पास मोबाइल है और आपको बोलेंगे आपका हाथ काट के ले जाए, मोबाइल ले जाए, कहते हैं हाथ काटो लेकिन मोबाइल मत लो. इतना एडिक्शन हो गया, सोचिए, इतना एडिक्शन हो गया. यस, वी शुड यूज इट फॉर आवर वर्क, बट वी शुड नॉट बी ओवरली एडिक्टेड. कंप्यूटर गेम्स, ओह आई नो, इन माई टाइम्स, मैं तो 2002-3 की बात कर रहा हूँ, उस समय भी लोग रात रात भर कंप्यूटर गेमिंग खेलते थे. उस समय लैन के थ्रू आपस में रूम वर्सेस रूम गेम खेलते थे. और कई बच्चे हैं, दे गॉट वेरी गुड रैंक्स इन IIT JEE. एक स्टूडेंट था, इसका टॉप 10 में इंडिया में रैंक था, एंड फाइनली वो बच्चा IIT में फेल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ गेम एडिक्शन. ये सब एडिक्शंस बहुत रिस्की है. तो अब आप बोलेंगे ठीक है, लेक्चर तो बहुत सुन लिए, इस कान में सुनेंगे, दूसरे कान में क्या होता है, निकल जाता है. प्रैक्टिकली क्या करें, गुड हैबिट्स कैसे डेवलप करें, लाइफ को कैसे बैलेंस करें, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा. सुनना चाहेंगे आप लोग? बहुत सिंपल फॉर्मूला, ABCD, याद रखना ही बहुत इजी है. सुनना चाहेंगे? A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट. दिस इज माई कंक्लूजन माई डियर फ्रेंड्स. आपने बहुत समय दिया, बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है. तो ये मेरा कंक्लूजन है आज के सेशन का कि अगर लाइफ को आपको बैलेंस करना है, आपको लाइफ को सक्सेसफुल करना है, गुड हैबिट्स डेवलप करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ये सब आप कर सकते हैं अगर आप सिंपल 4 चीज़ फॉलो करेंगे. ABCD, गुड एसोसिएशन, अच्छी संगति. कहते हैं ना, जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग. तो गुड एसोसिएशन, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, अच्छे लोगों से मिलना. जैसे हमारे इस्कॉन ग्वालियर सेंटर से आज आए हैं डॉक्टर वरुण जी, भी इस्कॉन से जुड़े हैं. तो बेलारूस में आप मेडिकल पढ़ने गए थे, राइट? वहाँ से इस्कॉन से कनेक्टेड हुए. तो एसोसिएशन, अच्छे संतों का संग करना, अच्छे लोगों का संग करना. आपके बीच में भी कैन सी सम फ्रेंड्स, यू नो, यू फील हैप्पी व्हाइल इंटरेक्टिंग विद देम, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलिए. B is for books. You must read good books. एकेडमिक्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट बियॉन्ड एकेडमिक्स कुछ ऐसे बुक्स पढ़ने चाहिए जैसे भगवत गीता है. आज हम सब भगवत गीता लेके आए हैं सबके लिए. सो वी हैव गॉट भगवत गीता फ्रॉम इस्कॉन एट वेरी वेरी कंसेशनल रेट फॉर यू. जैसे मैंने बताया, ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया के बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, महात्मा गांधी से लेके और आइंस्टीन से लेके और बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े मोदी जी जब वो शुरू में प्रधानमंत्री जी बने थे, वो कोई भी कंट्री जाते थे, क्या गिफ्ट करे थे उस समय? भगवत गीता. उन्हें कहा कि देयर इज नो ग्रेटर गिफ्ट दैट आई कैन गिव, देयर इज नो ग्रेटर गिफ्ट दैट यू कैन रिसीव. भगवत गीता से कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूं, और इससे कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है जो आप स्वीकार कर सकते हैं. तो आज ये भगवत गीता आपके लेके आए हैं. B फॉर बुक्स एंड C फॉर चैंटिंग. क्या चैंटिंग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और ये चैंटिंग ना 2 तरीके से होता है. एक जैसे कीर्तन हुआ शुरू में, और आजकल तो YouTube के ज़माने में आप देखिए हरे कृष्णा, इतने अच्छे अच्छे कीर्तन है, इतने अच्छे म्यूजिक के साथ है, वेरी सूदिंग. आप रात को सिंपल हरे कृष्णा सॉफ्ट कीर्तन लगा के सोइए, इतना अच्छा लगेगा आपको. एंड सेकेंड इज माला में जाप करना, या ऐसे ही एक जगह बैठ के, जैसे आप माला ले सकते हैं 108 बार, एक माला में 108 बीट्स होते हैं. जैसे मैंने कहा, मदर टेरेसा ने कहा उनको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलता है? बीट्स से. तो केवल हमारे सनातन धर्म में नहीं, इवन क्रिश्चियन मुस्लिम से भगवान का नाम लेते हैं, उनके पास भी ऐसे माला रहता है. तो ये बहुत पावरफुल है. भगवान से कृष्ण कितने दयालु हैं. उन्होंने हमें ऐसा, देखिए कोई बड़े आदमी से अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना मिल सकते हैं, मोदी जी से मिलना आसान है? नहीं. लेकिन भगवान से मिलना इतना आसान है. उन्होंने बोला बस मेरा नाम लो और मैं आपके सामने आ जाऊंगा. तो इसलिए केवल भगवान का नाम लेना है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तुलसीदास जी तो
भगवान के नाम के बारे में कितनी बुरी बुरी प्रशंसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरे उपाय। तो जो पत्थर था, जब ब्रिज बन रहा था लंका में, और ये सब देखिए बड़ी दुख की बात है, आजकल के यूथ क्या बोलते हैं? मिथोलॉजी। ये मिथोलॉजी नहीं है, रामायण महाभारत ये क्या है? हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री, नॉट मिथोलॉजी। मैंने कहा भगवान कृष्ण 5251 साल पहले आए थे, और राम जी तो और भी बहुत पहले आए थे। और वो ब्रिज आज भी नासा ने उसका फोटो निकाला, आपने देखा है वो पिक्चर? आप गूगल कर सकते हैं, नासा पिक्स फॉर द राम ब्रिज नियर रामेश्वरम। जब ब्रिज बन रहा था तो सब राम राम नाम लिख के स्टोन्स वर फ्लोटिंग ऑन वाटर। ये राम नाम की शक्ति है, भगवान के नाम की शक्ति, अद्भुत शक्ति है। एंड लास्ट डी इज फॉर डाइट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या कहता, भगवान क्या कहते, कैसा आहार करना चाहिए? सात्विक युक्त आहार, समय समय पे, इन मॉडरेट क्वांटिटी, गुड सात्विक भोजन। और सबसे अच्छा है अगर भगवान को भोग लगा दे तो और भी अति उत्तम हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति तदम भक्ति उपरितम स्नामी प्रयतात्मना। तब भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो और भी उत्तम हो जाएगा। तो आज सबके लिए प्रसाद भी लाए हैं। देखिए प्रोग्राम के बाद सबको प्रसाद भी मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप केवल कुछ मत याद रखिए क्लास में, अगर ये एक चीज़ याद रखिए, क्या? ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक, C फॉर चैंटिंग, D फॉर। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द अथॉरिटीज, टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन वेरी विथ कॉन्सेंट्रेशन। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? एक दो क्वेश्चन पूछिए, अच्छा लगेगा मुझे। एनी कमेंट्स? आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा, दैट साइड ओवर देयर। गुड एसोसिएशन। So good association is that association that gives positivity in your life, which develops good habits in you. क्योंकि association से we get affected. By association we mean the friends we talk to, the books we read, the movies we see. So all these are called association. हम उनका संग करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, ऐसे चीज़ देखना चाहिए, ऐसी चीज़ सुनना चाहिए जिससे हमारे अंदर अच्छे हैबिट्स डेवलप हों, जिससे हम बेटर पर्सन बने। अगर हम ऐसे चीज़ों के साथ संग करते हैं जिससे हमारे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ता है, बैड क्वालिटीज आते हैं, दैट इज बैड एसोसिएशन। ओके, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में टेम्पल्स टूट रहे हैं, हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, तो इस्कॉन उसमें उसके लिए क्या कर रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस्कॉन क्या कर रही है? तो देखिए, एक तो बहुत सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो एट दी नेशनल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, वी आर इन टच विथ आवर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, राइट? एस जयशंकर जी के टच में इस्कॉन अथॉरिटीज़। ममता बनर्जी से भी हमें इस्कॉन कलकत्ता के मिले। तो वी आर इन टच विथ वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनके थ्रू प्रेशर। इस्कॉन इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश को 3 दिन पहले कि हिंदूज़ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाए।